everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered in our class number 5 of phase equilibrium. In our previous classes of phase equilibrium, we have learned from the very basic that what are phases, what are degrees of freedom, and what are the one component systems of water, carbon dioxide, and sulfur. And we have discussed important points about the same. In today's class, we are going to discuss that how do we represent the cooling curve of one component or the pure component? How do we represent the two component systems as well as the eutectic mixture? So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is phase equilibrium class number 5. And our main motive is to find out that how to find out the cooling curve of one component system followed by two component system and eutectic mixture. Firstly, let me just introduce that what do you mean by two component system? Two component system क्या होता है इसके बारे में अभी हमें जानना है. एक्चुअल में स्टूडेंट्स टू कंपोनेंट सिस्टम की अगर हम बात करें देन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. ये हमारे पास क्या होता है टू कंपोनेंट सिस्टम और ये हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉर्मल फॉर्मूला है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपके पास टू कंपोनेंट सिस्टम है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे P, यहाँ पे 2. तो वी विल बी गेटिंग 4 माइनस पी एस फॉर्मूला. हमें मालूम है कि मिनिमम टू मिनिमम जो फेज की वैल्यू है वो 1 हो सकती है. दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग ओवर 4 minus 1 equals to 3. It means that to represent any state in a two component system, we require at least two variables to determine that state. मतलब अब तीन वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर और कॉम्पोजिशन. So these three can be the variables and we require at least three variables to describe the state of the two component system. But dear students, just take care of this point in your mind कि अगर हम थ्री कंपोनेंट सिस्टम को प्लॉट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास कुछ 3D में आएगा और वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करना ऑन द प्लेन ऑफ पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट. व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक वन वेरिएबल एज कांस्टेंट. टेम्परेचर प्रेशर या कॉम्पोजिशन में से आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए. Now, what can you take? Actually, में temperature is variable ना. टेम्परेचर को हम वेरी करवा सकते हैं and it is in our hands कि हम टेम्परेचर को कितना वेरी करवा रहे हैं. उसके साथ रीडिंग लेनी आसान होती है. Composition को वेरी करवाना is also quite easier, but whenever there comes the point of pressure, तो वो थोड़ा बहुत हमारे लिए वैसे भी मुश्किल हो जाता है. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन को लेंगे वेरिएबल की तरह और प्रेशर को ले लेंगे कांस्टेंट. ठीक है, तो टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन को अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो प्रेशर को क्या लेना पड़ेगा कांस्टेंट. सो टेक टेम्परेचर ऑन द y एक्सिस एंड कॉम्पोजिशन ऑन द x एक्सिस. इन दिस वे वी आर हैविंग द 2D ग्राफ टू रिप्रेजेंट द थिंग्स. बट नाउ टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट इन योर माइंड कि हम बात कर रहे थे F is equal to C minus P plus 2. This was the formula for calculating the degree of freedom for one component system. But whenever we are talking about the two component system, where we are taking one variable as constant, then you need to take care of this point in your mind that जितने वेरिएबल्स आप कांस्टेंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने एक वेरिएबल कांस्टेंट लिया है, ठीक है, तो आप -1 कर दीजिए. इफ यू पीपल आर टेकिंग टू वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक दैट C minus P plus 2 minus 2. Why are we subtracting by 2? क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स क्या लिए हैं कांस्टेंट लिए हैं. बट क्योंकि हमने सिर्फ एक वेरिएबल कांस्टेंट लिया है, ठीक है, तो हम -1 कर रहे हैं. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C minus P plus 1. And dear students, this will be our reduced phase rule. कौन सा रूल होगा ये? Reduced phase rule. यहाँ पे हमने ये वैल्यू यूज करनी है. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करोगे, we will be taking F is equal to C minus P plus 1 to find out the values. Fine? Okay. So now let me just take that what can be the minimum value of degree of freedom, just as we used to do whenever we were talking about the one component system. For example, we are having the reduced phase rule for two component system. So we are having the value
F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस C-P+1। यस, तो फेज की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इस वजह से F इज इक्वल टू C माइनस P+1 फॉर्मूला में अगर P को 1 पुट कर देते हैं और कंपोनेंट हमारे पास क्या है, 2 है। ऐसे ही था स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास इसी तरीके से था कि अगर हम इसको इस तरीके से पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। तो मतलब हमें मिनिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कोई भी पॉइंट 2 कंपोनेंट सिस्टम में। ठीक है, तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है। अब हमने डिस्कस करना है कूलिंग कर्व ऑफ वन लिक्विड, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर कंपोनेंट, फिर डिस्कस करेंगे कूलिंग कर्व ऑफ 2 कंपोनेंट, और फिर हम डिस्कस करेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। तो सबसे पहला सेगमेंट जो आज की वीडियो का है वो है कूलिंग कर्व ऑफ वन कंपोनेंट, या यूं कह लो कि कूलिंग कर्व ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेम्परेचर और टाइम का एक ग्राफ बना लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा आसान है। टाइम ये रहा आपके पास और टेम्परेचर ये रहा। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास y एक्सिस पे है, टाइम आपके पास क्या था, x एक्सिस पे है। तो हमने एक लिक्विड लिया A, वो जब क्या करने लगा, लिक्विड A सबसे पहले हमने इसको कूल करवाना शुरू किया तो एक पॉइंट पे वो लिक्विफाई हो गया। ठीक है, तो ये वाली कर्व क्या शो कर रही है, ये वाली कर्व शो कर रही है कूलिंग ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड जो है वो कूल हो रहा है। जब एक पॉइंट पे हमने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होने लग गया, तो तब विद टाइम इसके ऊपर जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी उस लिक्विड को सॉलिड में करने में लग जाएगी। यानी ऑल ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू सॉलिड। तो ये ग्राफ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आने लग जाएगा। एक पॉइंट जब आके हमारे पास सारा का सारा लिक्विड क्या हो रहा है, सोलिडिफाई हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आके हमारा लिक्विड जो है वो सोलिडिफाई हो गया। अब अगर हम और उसको करी जाएंगे, कूल और करेंगे, तो अब उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन जाने लग जाएगा। मैं यही बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड ए है, हम उसको कूल करवा रहे हैं, कूल करवाते करवाते वो अपने एक फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, जहां पे आके क्या हो रहा है, बेसिकली जहां पे वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। अब विद टाइम हम देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर डाउन नहीं जा रहा, क्योंकि अब जो है वो सारी की सारी कूलिंग कहाँ पे यूज हो रही है, या सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, उसको सॉलिडिफाई करने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए। ये बेसिकली सारी की सारी एनर्जी इसको सॉलिडिफाई करने में लग रही है। जब एक बार ये सारा का सारा सॉलिडिफाई हो गया, अब अगर हम और टेम्परेचर डिक्रीज करवाएंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा, और हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कूलिंग ऑफ सॉलिड। अब एक्चुअल में सॉलिड और ज्यादा कूल होगा। पहले लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिडिफिकेशन की कर्व है। एक पॉइंट के बाद वो सॉलिड भी और कूल होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, मैंने आपको बताया 3 सेगमेंट है हमारे पास इस वीडियो का, एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे सेगमेंट पे जा रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ, या कूलिंग कर्व, बेसिकली आप कर्व बोलिए ज्यादा बेटर है। कूलिंग कर्व ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स का कूलिंग कर्व किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने देखना है। तो ये मैं आपको डायरेक्टली कर्व से समझाऊंगी। अगेन यू विल बी प्लॉटिंग टेम्परेचर ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से देखना है। एक्चुअल में इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लिक्विड 2 है, A प्लस B। ठीक है, अब इन 2 लिक्विड्स में से एक लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। एक लिक्विड सॉलिडिफाई होगा एक पॉइंट तक। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि लिक्विड ए और बी में से कोई एक ऐसा लिक्विड होगा जो कि सबसे पहले सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगी किसकी, बी की। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन किसकी शुरू हो जाएगी, बी की। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि ए नहीं सॉलिडिफाई हो रहा, बट हाँ यहाँ पे बी का सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये धीरे 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 सॉलिडिफाई हो रहा होगा, साथ में ए भी अभी मौजूद है। एक पॉइंट पे आके यहाँ पे ए भी सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर में ए और बी दोनों के दोनों सॉलिड बनने में लगे हुए हैं। बी ने पहले शुरू कर दिया था, ए ने इस पॉइंट पे आके शुरू किया है, और दोनों के दोनों अब सॉलिडिफाई हो रहे हैं। इस पॉइंट तक आते आते ए और बी दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब अगर हम टाइम के साथ देखेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे दोनों का सॉलिड जो है और कूल होगा।
तो यहाँ पे आएगा कूलिंग ऑफ सॉलिड। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, एक बार देखिए ध्यान से, मेरे को इसको रब करने दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड ए प्लस बी है, सबसे पहले वो सॉलिड लिक्विड ए प्लस बी पे से हम देखते हैं इसको कूल करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसमें से एक लिक्विड यानी कि बी सॉलिडिफाई होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको और कूल करवाते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे ए भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों इकट्ठे ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों के दोनों सॉलिड बन जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड ए प्लस बी आ जाता है। फर्दर अगर हम इसको कूल करवाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन जाने लग जाता है, यानी यहाँ पे आता है कूलिंग ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से हमारे पास कूलिंग कर्व ऑफ टू कंपोनेंट्स का ग्राफ आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट, यानी हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज वीडियो। ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप द स्क्रीन। या सो व्हाट यू हैव टू सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। It is defined as a mixture of, eutectic mixture is defined as the mixture of two or more components. Eutectic mixture क्या है, दो या दो components का mixture है, which usually do not form a new compound. Eutectic mixture क्या है, जो यूजुअली मिक्स करके एक नया कंपाउंड नहीं बनाता, बट श्योरली अफेक्ट द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, बट श्योरली अफेक्ट द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ऑफ वन अनदर। सो बेसिकली यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है जो कि यूजुअली एक कंपाउंड नहीं बनाता है, बट वो एक दूसरे का क्रिस्टलाइजेशन अफेक्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अफेक्ट करता है तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी अफेक्ट करेगा। तो अब हम इसका कर्व जानेंगे और इस कर्व से बहुत सारी चीजें जो है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल कंसेप्ट लगेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है जब भी हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट ऐड कर रहे होते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंपोनेंट ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे दूसरा कंपोनेंट। जैसे सपोज प्योर ए यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 है, धीरे धीरे ये 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रही हूँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, यहाँ मेरे को थोड़ा सा करने ही दे दो, इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं। ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, अब ये सही है, यहाँ पे लिख देते हैं, या आप भी साथ साथ बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पे प्योर बी कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो प्योर बी यहाँ पे 100 है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या होगा 90, फिर यहाँ 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और यहाँ पे 100। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस चीज को आप ये ध्यान में रखें कि मान लीजिए ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। ठीक है, ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ए का। सो दिस इज ए का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिक्रीज करके मान लो यहाँ पे आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनिमम आता है। ए में हम बी के एडिशन कर रहे हैं तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। वैसे ही बी का मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और ये डिक्रीज करता 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 यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों ने, दोनों की मिक्सिंग हुई, दोनों की मिक्सिंग करके इन्होंने कोई एक ऐसा कंपाउंड नहीं बना देना है। ठीक है, इट डजंट फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, बस ये है कि एक दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट ये अफेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये बात किया कि ए का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो करते करते करते, मतलब उसमें जब हम बी को ऐड कर रहे हैं तो वो करते 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 डिक्रीज हो रहा है। मैंने ये चीज गलत बोल दी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बस ये बोलना चाहती हूँ कि लिक्विड ए में जब हम बी को ऐड कर रहे हैं
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्टरनेटिवली टर्म्स यूज हो जाती है। इसी तरीके से बी है, अगर बी में आप एक ही एडिशन करते हो, करते 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 इसका भी डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। अब ये पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देंगे कि मान लीजिए इसका डिक्रीज इस तरीके से आता है। ये डायग्राम एक बार बनानी थोड़ी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओ पॉइंट को हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। कौन सा बोलेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट। सो ओ को हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। और यहाँ पे है हमारे पास बी, ये बी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी एंड दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, यूटेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए और बी दोनों मिक्स करके कोई एक नया कंपाउंड नहीं बना रहे। अब क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे आएंगे उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है, इस सब एरिया में आपके पास एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है, ये है हमारे पास लिक्विड ए और बी। ये क्या है, लिक्विड ए और बी। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ये पूरी जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या है, ये है सॉलिड बी। और इधर जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये क्या है आपके पास, सॉलिड ए। ये क्या है, सॉलिड ए, और ये क्या है, सॉलिड बी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे सॉलिड ए इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, और यहाँ पे सॉलिड बी इक्विलिब्रियम है लिक्विड के साथ। इसके नीचे वाले पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने एक ही डायग्राम को मेंशन रब कर करके वहीं पे चेंजेस करवाए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे करवाऊंगी। तो अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करने वाली हूँ। ठीक है, so this is solid A in equilibrium with liquid, this is solid B in equilibrium with B liquid। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में सॉलिड A और B है। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी में लेके आएंगे अभी। मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन आपको करवा देती हूँ। जैसे आपके पास है ये A, ठीक है, ये है आपके पास B, और यहाँ पे है आपके पास C, और इधर है D, और यहाँ पे है O। ठीक है, तो अब मैं नीचे वाली सब चीजें रब कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत होच पोच लगेगी डायग्राम, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान से, ये जो आपके पास O पॉइंट है, ये जो सी और डी के नीचे वाला एरिया है, ये सारा एरिया कौन सा है, ये सारा का सारा एरिया है आपके पास सॉलिड ए और बी का। सारा का सारा एरिया कौन सा है आपके पास, सॉलिड ए और सॉलिड बी का। इसी तरीके से अगर आप ये वाला एरिया देखते हो, ओ बी डी ओ, तो ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है सॉलिड बी और लिक्विड का। किसका एरिया है ये, सॉलिड बी और लिक्विड के इक्विलिब्रियम का। फिर ए सी ओ ए, ये वाला एरिया है सॉलिड ए और लिक्विड का। और इसके बाद ये जो एरिया बचता है आपके पास, ये सारा का सारा है लिक्विड ए और बी का। यहाँ पे ये आपको कोई भी पॉइंट इस में बना के पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस वाले पोर्शन पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि कोई भी पॉइंट अगर आपको कहीं भी लगा के बता पूछ लिया जाए कि बताइए जी ये वाला पॉइंट मान लीजिए जी है, तो जी फेस जी पॉइंट के ऊपर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लिक्विड ए प्लस बी दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे बताओगे आप जी पॉइंट। ठीक है जी। इसी तरीके से कहीं और आपको पोजीशनिंग मेंशन करके पूछा जा सकता है कि वहां पे कौन सी चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो वो आपको मालूम हो। अब बात आती है यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज को पता करने की। ये जो ओ है, ये हमारे पास क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट जहां पे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, दो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड ए और सॉलिड बी
वैसे भी हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फेजेस दो हैं क्योंकि सॉलिड ए और सॉलिड बी है, तो 2 - 2 + 1 यानी कि 1। तो इस वाले रीजन में अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी कॉम्पोजिशन पूछ ली जाती है, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, आप ये बोलेंगे कि सॉलिड लाइन के ऊपर, सॉलिड लाइन के ऊपर हमें किसकी कॉम्पोजिशन मिलती है, सॉलिड लाइन के ऊपर हमें कॉम्पोजिशन मिलती है सॉलिड की, और कर्व के ऊपर हमें कॉम्पोजिशन मिलती है हमेशा लिक्विड की। ये मैं आपको समझाती हूँ जरा। जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से शो किया, इस तरीके से डायग्राम शो की, और ये बोला कि यहाँ पे अगर आपको कहीं भी पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे था सॉलिड बी इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, ठीक है, अगर आपको कॉम्पोजिशन पूछ ली जाए किसी भी पॉइंट पे, इस वाले एरिया में किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछ ली जाए कॉम्पोजिशन, तो आप सॉलिड की कॉम्पोजिशन सॉलिड लाइन से बताएंगे और लिक्विड की कॉम्पोजिशन कर्व से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ये नोट करनी है, एक होता है टाई लाइन, एक क्या होता है टाई लाइन। तो टाई लाइन जो है वो कंबाइन करती है दो फेजेस को, ये कंबाइन करती है, जैसे लिक्विड और सॉलिड दो फेजेस को कंबाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टाई लाइन, ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, मैं आपको कंपोनेंट्स निकालने सिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे ये वाले एरिया में अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाता है तो आप रिड्यूस्ड फेज रूल से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लोगे। मान लीजिए आपसे कर्व के ऊपर पूछ लिया जाता है कि कर्व के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो कर्व के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले भी निकालना सीखा हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए। कर्व के ऊपर आपके पास दो फेजेस हैं, सॉलिड बी और लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे F = C - P + 1। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे टू कंपोनेंट्स है, फेजेस की बात करें तो टू फेजेस है, 2 - 2 + 1 यानी कि 1। तो कर्व के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप बोलोगे सॉलिड ए, सॉलिड बी और कंपोजिशन एट लिक्विड पॉइंट O, ठीक है, सॉलिड ए, सॉलिड बी और कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एट पॉइंट O। यहां से आपका यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे लिक्विड A + B में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाती है तो C - P + 1 कीजिए। कंपोनेंट आपके पास दो हैं और फेज लेकिन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड A B जो है वो दोनों के दोनों सेम फेज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेज आपके पास एक ही है, 2 - 1 + 1 दिस विल गिव यू 2, यानी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे 2। तो आपको एटलीस्ट दो पॉइंट्स चाहिए इस एरिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में देखा था। आपको नंबर ऑफ फेजेस फाइंड आउट करने आने चाहिए, उस हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एंडिंग में ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है ये उस वाले कंपोनेंट के पास लाई करेगा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है। जैसे सॉलिड ए है, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है, तो यूटेक्टिक पॉइंट किसके पास लाई करेगा, सॉलिड ए के पास लाई करेगा, और बी से होगा दूर, क्योंकि बी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है यूटेक्टिक पॉइंट उसी के पास लाई करता है, और उसी कंपोनेंट की कॉम्पोजिशन भी ज्यादा होती है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट हमेशा उसके पास लाई करेगा जिसकी कॉम्पोजिशन उसके अंदर ज्यादा होगी। यूटेक्टिक पॉइंट के अंदर ज्यादा कॉम्पोजिशन हमें सॉलिड ए की देखने को मिलेगी, ठीक है। और मोर ओवर यूटेक्टिक पॉइंट लाए भी ए के पास ही करेगा, बी से होगा दूर। ए के पास क्यों करेगा, क्योंकि ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसकी फ्रीजिंग जल्दी हो जाती है, ये जल्दी फ्रीज कर जाता है, तो इसलिए यूटेक्टिक पॉइंट ए के पास पाया जाएगा, या यू कह लो उस सॉलिड के पास पाया जाएगा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम है। आई नो इट वॉज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आप एक दो बार इस वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ आता यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट और नॉन कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगी। सो टिल देन अच्छे से इसको रिव्यू करो, नोट्स बनाओ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं लिखवाई, वर्बली बोली है, तो वो आप साथ साथ लिखिए, ठीक है जी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।